दिल्ली में खामेनेई के लिए शोक सभा, ईरान एम्बेसी पहुंचे कपिल सिब्बल और पवन खेड़ा। अली खामेनेई की मौत पर कपिल सिब्बल का बड़ा बयान। ईरान इजराइल तनाव के बीच संभल में पढ़ी गई जुमे की नमाज। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भारत की राजधानी नई दिल्ली में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कई पॉलिटिकल और सोशल हस्तियों ने हिस्सा लिया और खामेनेई के निधन पर दुख जताया। इस दौरान राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल और इसी के साथ ही कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा भी इस शोक सभा में शामिल हुए और ईरान के लोगों के लिए अपना सपोर्ट जताया। इसी के साथ ही शोक संदेश लिखा। आपको बता दें कि 28 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान में यूएस और इजराइल के जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक में आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर आई थी। इस घटना से वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ गया है और कई देशों में विरोध और सपोर्ट जताया गया है। नई दिल्ली में ईरान एम्बेसी में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कपिल सिब्बल और पवन खेड़ा के साथ साथ कई और भी लोग शामिल हुए। उन्होंने खामेनेई की हत्या पर दुख जताया और कपिल सिब्बल ने कहा कि इंटरनेशनल झगड़ों को बातचीत और डिप्लोमेसी से सुलझाना चाहिए, हिंसा से नहीं। आप भी सुनिए क्या कुछ कपिल सिब्बल ने खामेनेई की मौत को लेकर के कहा। I've come here to pay my heartfelt, deepest condolences at the manner in which the Ayatollah Ali Khamenei was assassinated. I personally believe, and I'm sure that every nation believes that conflicts should be resolved through dialogue and not through the use of weapons of mass destruction, and that it is necessary to do so to preserve the global order. In fact, I thought that after the Second World War, the global community decided to forge a rule-based global order. But I think, unfortunately, in the last couple of years, there has been a slow dismantling of that rule-based global order. That's not good for global peace. That's not good for any nation, because we cannot revert to a situation where nations believe that might is right. That's the law of the jungle. And I'm sure that the global community will get together, no matter what their differences, to enter into a dialogue, resolve issues, and let global peace be maintained. Sibyl, are you satisfied with the stand of the changing government? I would suggest that at this juncture, we do not talk about politics. I've come here to condole the manner in which the Ayatollah was assassinated. On US submarine Again, I said these are matters of politics that I'm willing to talk to you at my home. You are welcome to come there, but I don't think this is the right place for me to comment on the actions of other powers. इस दौरान खामेनेई की याद में ईरानी एम्बेसी में झंडा आधा झुका दिया गया, जो शोक का प्रतीक है। वहां मौजूद लोगों ने दिवंगत नेता खामेनेई को श्रद्धांजलि दी और ईरान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई। इसी तरीके से हैदराबाद में ईरानी कॉन्सुलेट जनरल में एक शोक बुक खोली गई, जहां भारतीय नागरिकों को खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए उस पर साइन करने का मौका दिया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इस दुखद घटना पर अपनी संवेदनाएं जताई। इससे पहले भारत सरकार ने भी खामेनेई की मौत पर दुख जताया। भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरान एम्बेसी पहुंचकर शोक संदेश भी लिखा और इसी के साथ ही ये तस्वीरें सामने आई है कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की, जो खामेनेई की मौत पर शोक संदेश लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। Yes, we have come here to express our solidarity on behalf of the Congress party and on behalf of every citizen of India. Solidarity with the people, brave people of Iran, who have upheld the legacy of Karbala.
in the middle of Ramzan, the holy month of Ramzan, on the 10th Roza, the supreme leader of Iran, Ayatollah Khamenei, was martyred. We have come here to express our solidarity with every single citizen of Iran. I wish the government of India had spoken and spoken in time and at the right level. I wish the Prime Minister of India had condemned the illegal attack on Iran by Israel and America. I wish the Prime Minister had expressed his condolence to the Supreme Leader's martyrdom. This is exactly what we wrote, that we stand in solidarity with the people of Iran. Especially your message for the people of Iran. We are with you. We are two ancient civilizations. We are bound by history, by culture, by tradition, by humanitarian values, by the values of Hazrat Imam Hussain ibn Ali. तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो संभल में ईरान इजराइल के तनाव के बीच पहले जुमे की नमाज अदा की गई। बता दें कि संभल में रमजान के तीसरे जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच अदा की गई है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थानीय पुलिस के साथ आरपीएफ और पीएसी को भी तैनात किया गया। सत्यव्रत पुलिस चौकी पर बने कंट्रोल रूम से पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई। शुक्रवार को संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट पूर्व स्थित शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान नमाज पढ़ करके बाहर निकले मुसलमानों ने क्या कुछ कहा और ये नमाज को लेकर के सुने उनका ये बयान। आज जामा मस्जिद में नमाज हुई, क्या कहेंगे? क्या बढ़िया, बहुत सुकून और अमन अमान के साथ नमाज अदा हुई है। अब हमें सहयोग शासन का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी अवाम रहती हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अमन भाईचारा और अमन से रहना चाहिए, सबको भाईचारे से मिलकर रहना चाहिए, सबको एक दूसरे से मिलकर त्योहार करना चाहिए, ना कहीं कोई वैसे वाली बात हो। जुमे की नमाज अदा की गई है, क्या कहेंगे? किस तरह की दुआ की गई? मुल्क की और शहर की खुशहाली के लिए हमारे मुल्क कैसे तरक्की करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और हमने अमन अमान की, अपने भाईचारे की, जैसे त्योहारों का भाईचारा बना रहे। और हिंदुस्तान में तो मैं समझता हूँ मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छी कोई सरजमीन नहीं है। हिंदुस्तान एक वो गुलदस्ता है जिसमें हिंदू मुसलमान सब आपस में भाईचारे मोहब्बत के साथ रहते हैं और आपस में भाईचारे की दुआई हमने करी है। भाईचारे की दुआई करनी चाहिए। हमने अपने हिंदुस्तान के अमन अमान के लिए, खुशहाली के लिए आपस में कैसा भाईचारा कायम है, मोहब्बत है आपस में कैसे। होली का त्यौहार बीता है, अब ईद का त्यौहार आएगा। होली मिली है, अब ईद मिलेंगे, आपस में भाईचारा मोहब्बत रहना चाहिए। आज क्या दुआ की गई है? रमज़ान का तीसरा जुमा बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत सुकून से नमाज अदा की गई है। जैसे रमज़ान में नमाज आते हैं ऐसे आए हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही नमाज अदा होती रहेगी और ऐसे ही अब तक त्योहार मनाते रहेंगे। होली बहुत शानदार हुई है और इंशाल्लाह ईद और अगला जुमा भी ऐसे होगा। हमने जुमे की नमाज में देश में, प्रदेश में, खासकर संभल शहर में अमन चैन सुकून के लिए दुआ की है। जो लोग परेशानी है अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर करे, सबके कारोबार चलाएं, सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं, मिलजुल कर त्योहार मनाएं। आज नमाज हुई है, क्या कहेंगे? नमाज हुई, बहुत बढ़िया नमाज हुई। शांति के लिए दुआ की गई, देश दुनिया में अमन कायम रहे, भाईचारा बना रहे। हमने साहब ये दुआ की और सबके लिए भाईचारे की, आपस में सौहार्द बना रहे, इसकी दुआ की। आज किस तरह की दुआ नमाज की? नमाज तीसरा जुमा था बहुत अच्छी तरह से हुआ है, बगैर आराम और सुकून के साथ हुआ है। पूरे देश और सारे लोगों के लिए दुआएं की गई हैं, उनकी तरक्की करें देश और इसके अमन शांति रहे, पूरा उसको नहीं कहा गया है। और पूरा देश अल्लाह का है, बहुत अच्छा चलेगा, आपस में मिलजुल कर चलेगा। आपको बता दें कि सत्यव्रत पुलिस चौकी पर बने सीसीटीवी कंट्रोल रूम से जामा मस्जिद क्षेत्र की लगातार निगरानी की गई। धार्मिक स्थल की ओर जाने वाली 3 रास्तों पर बैरियर लगा करके आरपीएफ और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया था। नमाज अदा करने वाले लोगों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को इन रास्तों से आने की अनुमति नहीं दी गई, यानी कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर देखा गया था और इसी के साथ ही सीसीटीवी से बाकायदा निगरानी भी की गई थी, क्योंकि
आपको याद दिला दे कि जब अली खामेनेई की मौत की खबर सामने आई तो भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, खास तौर से जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लखनऊ। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन की ओर से खास तौर से संभल में जुमे की नमाज के दौरान ये सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई थी ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। लेकिन देखने को मिला कि यहाँ पर शांति से जुमे की नमाज अदा की गई। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।